Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well, and this is an important video. Let me choose the pen. Yes, this is the most important video and most required video at the current time because we are having the second time postponed dates by ICMR. So you all must be very disappointed, frustrated, and also at the same time you all must be confused कि करे तो करे क्या. सेकेंड टाइम एग्जामिनेशन जो है पोस्टपोन्ड हो गया है, अब क्या करें, कब. अच्छा, जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं, दैट इज 6 जून, सैटरडे. ठीक है, 6 जून को आपका एग्जामिनेशन है. पहले ये होने वाला था 15 मई को, जो कि अब हो चुका है पोस्टपोन. यानी आपकी जो नई डेट है वो 6 जून है. सो in this video I will tell you exactly that what to do now, right? Because your examination has been postponed, so that this postponement will become your biggest opportunity, right? And not a hurdle. You all must be, I can know that many of you have also messaged me and also informed me that you already have your travel and accommodation finalized. So it's a huge financial loss of so many students, but we know that nobody will take the accountability. So it's our own duty to make the best out of it, right? Because nobody will say that they will provide you whatever money you have wasted in your flight tickets or train tickets or whatever accommodation. So I will suggest to avoid that, avoid all those things, and have a again 30 days strategy, right? Again 30 days strategy, so that you will have an opportunity, so that your selection will be confirmed, right? So in this video I will be providing you क्या करना है नेक्स्ट. ठीक है, देखो बच्चों, लॉस तो हो चुका है. आप में से बहुत लोगों का ग्रुप में मैंने देखा मैसेज, सब लोगों ने टिकट्स बुक करी थी बिकॉज बहुत नियर बाई आ गया था. ओनली 1 वीक वॉज लेफ्ट, सो एवरीबडी वॉज क्वाइट रेडी फॉर देयर एग्जामिनेशन. नाउ as per the notification yesterday whatever we have got, you all must be in a panic situation कि इतना सारा पैसा लग रहा है. कई लोगों ने ये भी सुना मैंने कि CL EL लेके वो पढ़ाई कर रहे थे अपने ऑफिस से कि सिर्फ एक हफ्ते बचे हैं. सो उन सब का भी तो कितना लॉस हुआ है. ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? देखो, जो हो गया वो तो हो गया, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते. बट अब ये भी बात आती है कि क्या फिर से एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा 6 जून को, अगर डेट उन्होंने दिया है. सो क्या फिर से ये थर्ड टाइम पोस्टपोन हो जाएगा? सो फॉर दैट यू नीड टू डू दी योर बुकिंग्स. लेकिन जो भी बुकिंग्स हैं वो आप फ्लेक्सी मोड में कीजिए. फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन टिकट्स तो ठीक है कैंसिल हो जाती हैं इजीली. फ्लाइट टिकट्स आप कर रहे हैं तो उसे फ्लेक्सी मोड में कीजिए, ताकि अगर थर्ड टाइम भी पोस्टपोन होता है, सो दैट यू विल नॉट बियर अ ह्यूज लॉस. नाउ what should be your strategy? Now, as we already know, it is postponed for the second time. You all must be frustrated, confused, panic, and बहुत सारे लोग irritated होंगे. So this video will guide you what to do next. So ये सारी चीज़ों में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? टाइमलाइन. कि अब आपके पास 30 डेज और हैं. ठीक है, रफली 30 डेज और हैं. सो इस 30 डेज में आप ऐसा क्या करें कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो निकल जाए. नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक्स यू ऑल विल कमिट इफ यू आर गेटिंग सम मोर डेज, सो यू विल लूज कंसिस्टेंसी. अब जो 6 डेज बचे थे उसमें जो रेगुलरली आप पढ़ रहे थे, व्हाट यू विल डू? अब 30 डेज बचे हैं, सो यू विल से आज पढ़ लेता हूँ, फिर छोड़ दिया, कल पढ़ लेता हूँ, फिर छोड़ दिया 2 दिन. नो, you will start losing your consistency, and that is not at all recommended. You have to study the way you were studying just right now. ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है. ये नहीं सोचना है कि 30 डेज. नाउ what you will do? I will prepare some more. I will prepare to gain some more, and for that you will start looking too many new books. That is also not recommended. You don't have to look new book. You only have to polish whatever you have already studied. ठीक है, जितना सिलेबस आपने कवर कर लिया है, एंड जिस सिलेबस में, जिस सिलेबस के यूनिट में आप कंफ्यूज थे, उसे पॉलिश करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल रिसर्च मेथोडोलॉजी, आई नो यू आर वीक इन दिस.
बायोस्टैटिस्टिक बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, तो इसमें आप वीक हो तो उसको आपको करना है। रिविजन को आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। ज़बरदस्ती का आपका बर्नआउट होगा क्योंकि फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपका, आपने बहुत सारी लीव्स ले रखी हैं अपने ऑफिस से, तो अब आपको नेक्स्ट टाइम फिर से लीव्स अप्लाई करनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी में डाल के रखती हैं, बट पता है हमें सारी चीज़ों के बाद ही अच्छी चीज़ मिलती है, इतने सारी चीज़ों के बाद ही कोई अच्छा आउटकम आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोल रहे थे, मैम कहीं ये स्कैम तो नहीं, बार बार एग्जामिनेशन पोस्टपोन इज इट सो कि ये स्कैम से रिलेटेड है? सो सी, वी कैनॉट से एनीथिंग। जो फर्स्ट पोस्टपोन हुआ था वो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्लैश की वजह से हुआ था। जिस दिन हमारा एग्जाम था उसी दिन सीएसई है था, तो उस वजह से वो पोस्टपोन हुआ था, राइट। नाउ फॉर द सेकेंड टाइम आई गॉट टू नो दैट मेनी ऑफ द बीएड स्टूडेंट आर हैविंग देयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सो दे हैव रिटन मेल, so many students have mailed them, and apart from that they are also having some other reason as well, we don't know about it, right? So we only have to focus on what we can do next, and not कि क्या हो गया है तो आप बहुत बस रोना ही है, नहीं। आप अच्छे बच्चे हो, आपको उठ के फिर से प्रिपेयर करना है, तो ये चीज़ नहीं करना है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना, उसी पेज से पढ़ना है जिस पेज से आप पढ़ रहे थे। आपका एग्जामिनेशन कल ही है, उस हिसाब से मान के पढ़ो ना। बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ने हैं, पॉलिश करना है। अब व्हाट शुड यू डू नाउ? रिवाइज शॉर्ट नोट्स रेगुलरली, जितने भी यूनिट के नोट्स बनाए हैं उसको रेगुलरली पढ़ते जाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं उसे पढ़ो, एंड इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ो जो मैंने क्रैश कोर्स में दिए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ो जो मैंने क्रैश कोर्स में दिए हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट मैंने करा चुके हैं, एक जो हमारा सैटरडे को होना था वो भी होगा। नाउ फोकस ऑन वीक एरियाज। अब आपके पास टाइम है कि जिस यूनिट में यू आर वीक, यू कैन गिव टाइम टू दैट पर्टिकुलर यूनिट एंड यू कैन रिवाइज इट, एंड देन यू कैन मेक द बेस्ट नोट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। बार बार रिवाइज करो। तो अभी का जो टाइम है ना, आप जो लोग चूक गए थे कि अरे अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, थोड़ा सा और टाइम चाहिए था, तो लो मिल गया 30 डेज का टाइम। अब अच्छे से पढ़ के पूरा पूरा जितना भी आपको टाइम की कमी लग रही थी, बहुत सारा आपको टाइम मिल गया है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो एंड सीधा सीधा एग्जामिनेशन का रिटर्न क्लियर करो, ठीक है। नाउ डेली स्टडी प्लान, अगर आप वर्किंग हो सो एटलीस्ट 2 आवर्स तो आपको कोर्स सिलेबस को देना ही है, किसी भी यूनिट को दो। 1 आवर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, 30 टू 1 आवर 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स को देना है, जीके को देना है, एप्टी को देना है, ठीक है। और सोने से पहले रिवाइज करके सो। तो रेगुलरली का ये होना चाहिए 2 3 4 5 5 आवर तो आपको इस एग्जामिनेशन को देने ही होंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे 5 आवर्स दो, तब जाके आपका एग्जामिनेशन जो है वो निकलेगा। अगर अच्छा टाइम दे पाओगे तो आपका रैंक इम्प्रूव होगा, आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे, और ये कैसे होगा? कंसिस्टेंसी से होगा, ठीक है। स्टे अहेड वाइल अदर्स स्लो डाउन। कोई अगर रुक जा रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, आप उस चक्कर में मत रहो, आप एक कदम आगे रहो और वो आपको अपने एग्जामिनेशन में दिख जाएगा। नाउ stay consistent and revise smartly and subscribe bio.com, right? ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले, आपको गाइडेंस मिले। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, पूरी तरह से रिलाई करना चाहते हैं, सो यू कैन सब्सक्राइब बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग सो मेनी डिफरेंट वीडियोज। अच्छा, वन मोर पॉइंट, इफ मेनी ऑफ यू आर अ कैंडिडेट फॉर CSIR, ठीक है, if you are also an aspirant of CSR examination, so I will also say कि don't focus on only a single examination, that is scientist B. There are so many other examination as well जिस पे आपको focus करना है, ठीक है। तो CSIR पे भी focus करो, या इसके अलावा जितने भी examination आपने अपने लाइफ साइंस से फिल किया है उसे भी करो। एंड इसके लिए आपके पास 30 डेज हैं, सो नहीं जाना है, फिर से प्रिपेयर करना है। और कुछ डाउट हो सो डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड सारे सीरीज देखते रहो जितने भी मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।